السلام علیکم. مجھے یاد آیا کہ ایک ٹاپک جس پہ میں نے تھوڑے سے کامنٹس بھی تھوڑے سے کیا ایک دو ہی کامنٹ تھے کہ کچھ لوگ میری طرح کافی دنیا سے بہت پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا جی یہ آپ آنکھوں کی جو لیزر سرجری نہیں ظاہر کی جو ہوئی ہے کہ اس کو آپ غلط پروموٹ کر رہے ہیں. ویسے تو اس کو میں نے پروموٹ کر دیا اس بندے کو ہمیشہ کے لیے, اور گھر بیٹھے ہوئے آپ دنیا سے پیچھے ہوتے ہیں, اپڈیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ لیزر سرجری تو یہ ہوتی بڑی خطرناک ہے. تو ایونچولی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ بالآخر یا آخر کار آپ کی آنکھوں کی تباہی ہے اس میں. تو اس قسم کا جو غلط اور اتنا دنیا سے پیچھے خر اس کا تو بندوبست میں نے کر دیا. لیکن میں آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ لیزر سرجری کو نہ تو ہم کوئی پروموٹ کریں, ہمارے تو اپنا ایشو گھر کا کہ ہم نے کیا کرنا, کون سی سرجری وہ نہیں تھی. آپ $6,000-7,000 ان کی فیس ہے, ہم نے ان کو کیا پروموٹ کرنا. ہم تو اپنا ایشو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی کس سے, نظر کا ایشو خاندانی طور پہ ہمارے پورے گھر میں کہ اسامہ کی نظر صحیح ہے. باقی جیسے ایسا اگر میرے بھائیوں کی بات کریں, میری ایک ہی بہن ہے اس کی بات کریں, ہمارے پورے فیملی میں یہ نظر بہرحال اس میں ایشو رہا سب کو. ایک جو ہے وہ اس میں میرا بھائی ایک تھا تو اس کی نظر ٹھیک تھی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے لیے یہ تو ایڈوانس اس کے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے آنکھوں کا اسکین, برین کا اسکین, جو فلانے اسکین, یہ ساری چیزیں کر کے فائنلی وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ہم نے کرنی ہے سرجری, یہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, یا آپ کو ہونی چاہیے, یا ڈینجرس تو نہیں, دس اینڈ دیٹ. اچھا ایک تو میں یہ بتاؤں کہ وہ اس نے لائبہ نے آج سے تین سال ہو گئے ماشاءاللہ بہترین, کوئی چشمہ ہر وہ سنبھالنے کی ضرورت نہیں. جم آپ جاتے ہو آپ کو وہ ایشو نہیں, جم کے اندر بڑے آرام سے وہ ہر چیز ہے. تو یہ بھی عزیر کو اس کو بڑی مشکل سے, اس کو ہم 2 سال سے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اب جا کے یہ راضی ہوا بڑی مشکل سے. تو ہم خوش ہوئے کہ چلو ایگری کیا, کیونکہ اس کی یہ خراب عادت کیا کہ یہ لینس جب پہنتا ہے نا, چشمے کی بجائے لینس پہننا, کیونکہ انہوں نے جم کرنا یہ کرنا جا کے, تو وہ اسی لینس کے ساتھ یہ سو جاتا ہے رات کو. دنیا میں کہیں ریکمنڈیڈ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں بڑا ڈینجرس ہے, کبھی بھی لینس یہ جو لگا کے آپ رات کو سو نہ جائیں. سوئے نہیں, لیکن یہ کرتا تھا, ہمیں کو بڑی فکر رہتی تھی. وہ خیر اس کے لینس وہ ہوتے 24 آورز والے, اگر وہ, لیکن یہ بھی پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ نکالنے چاہیے, پھر بھی نہیں وہ پہننے چاہیے. چلیں گھر تو وہ ہو گئی, شکر ہے آج 3-4 دن ہو گئے فرسٹ کلاس بہترین. ایک تو چلو یہ ایشو تو ہوا کلوز. اب دوسری جو اصل میں بات کرنا, میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں یہ لیزر سرجری اس کو کوئی بندہ وہی پھر میرے جیسا ہی ہوگا جو دنیا سے پیچھے, وہ کہے گا پتہ نہیں نئی چیز نئی ٹیکنالوجی. آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے میرا ٹیکنیکل مینیجر میر پرخاش شوگر مل میں جہاں میں انجینئر تھا, تو وہاں جو ہمارا باس تھے, آپ یہ سوچیں یہ 30-32 سال یا 35 سال کی بات ہے کہ اس نے کراچی سے یہ لیزر سر کو ایک ہاسپٹل, آنکھوں کا اسپیشل ہاسپٹل تھا, ہم نے بس اتنا سنا تھا کہ ان کی وہ لیزر سرجری انہوں کرانی. جب واپس آئے تو وہ دوسرے دن بینک آئے جب اپنا شوگر مل, تو وہ عجیب ظاہر ہے جب ساری عمر بندہ چشمہ پہنے, چشمے کے بغیر, میں تو ایک مرتبہ دیکھ کے ڈر گیا کون آ رہا. تو اللہ مغفرت کرے, بیچارے کا انتقال ہو گیا ان کا. میں مقصد کرنے کا ایک دن یا دوسرے دن وہ اپنی شوگر مل بھی آ گئے اور بغیر چشمے کے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے, تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. آپ نے نہیں کروانا, دوسری سرجری کراؤ, نہیں کروانا ہے تو آپ چشمہ پہنے رکھو. اب میں آتا ہوں اس ایشو پہ. اب بتاؤ آسفا, تم آگے میرے لیے تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں, یہیں سے کروانا آپ کے لیے, یہی کہہ رہے ہیں. میرے لیے دیکھیں یہ 2 ٹائپ, انہوں نے کہا یہ تو سرجری اوپر ٹاپ کا جو بھی انہوں نے کیا جس طرح. میرے لیے جو اس کا ایکچوئل لینس ہوتا ہے, اس کے فرنٹ والے کے بیہائنڈ پیچھے جو لینس جس کو کہتے ہیں ایکچولی, مجھے انہوں نے سارا اسکیننگ اور وہ ساری کرا کے یہ کہا کہ آپ کا وہ لینس آپ کے وہ چینج ہوں گے. اس میں انہوں نے 3 آپشن بتائے کہ جیسے دور کا چشمہ ایک خالی وہ کریکٹ کروا لو, باقی قریب کے لیے چشمہ پہنو, پھر ان کا انٹرمیڈیٹ کو جو اس کا کروا لو, دور اور وہ دونوں ملا کے وہ ہم سرجری کرتے ہیں. تو آپ کو پھر خالی جو ہے فائن پرنٹ آپ کو چشمہ لگا کے پڑھنا پڑے گا. ادروائز آپ فون بھی جو ہے وہ بغیر چشمے کے, فون لیپ ٹاپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا آپشن انہوں نے دیا, یہ بھی میں کہتا ہوں چلو ایک معلومات ہے, کسی کو نہ پتا ہو, مجھے نہیں پتا تھا پہلے ہی کا. تیسرا آپشن انہوں نے کہا تینوں کی ہم کریکشن لینس وہ ڈالیں گے جو یہ تینوں آپ پڑھ بھی سکیں گے. اس میں صرف ایک ایشو آئے گا کہ رات کو ڈرائیونگ میں لائٹنگ جو آپ کو دور ہے, تو وہ اس میں تھوڑا سا آپ کو وہ فیل ہوگا عجیب سی. وہ ایک لائٹ جیسے کلیئر ہوتی ہے اس کی بجائے نا وہ جیسے ایک اس کی سائڈوں میں تھوڑا سا گولا سا بنا ہوا دور اس کی لائٹ کا. کہتا ہے یہ ذرا سا ایک ہوتا ہے, لیکن یہ بھی بادر نہیں کرتا لوگ کسی کو. اور اگر کوئی
हम बताते हैं, अगर वो नहीं कराना चाहे तो इंटरमीडिएट दूर की और इंटरमीडिएट दोनों की इसकी करेक्शन करवा ले, और बाकायदा वो लेंस वो निकाल के वो दूसरा डालना है। अब यहाँ जब ये बात आई, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। तो इस बात का मुझे इल्म था कि वो इतना अरसा पहले लेज़र सर्जरी पाकिस्तान में 1-2 हॉस्पिटल मैंने नाम सुने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा नाम है, बड़े डॉक्टर्स हैं, बाहर की मशीनरी है, सब कुछ है। आँखों का मामला है, देखें जो चलो अफोर्ड ना करता हो अलग बात है, खुदा का शुक्र है, हम तो हमको किसी किस्म का वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कई चीज़ों में मैं ये कहता हूँ कि भाई जितना पैसा यहाँ ये ले रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें मेरी सर्जरी आप मल्टीप्लाई कर लें, तकरीबन $9,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो, आज जो रेट है कैनेडियन, तो ये कितने पैसे बना, 18-20 लाख रुपया पाकिस्तान का ये बनता है मेरी वो लेंस चेंज करने के। मुझे ये पता है कि मेरे एक मामूजाद भाई थे, वो जब मैं वहाँ था, खैर इसको भी 8-10 साल हो गए, आज की बात नहीं है, एक हॉस्पिटल है वहाँ, वो चैरिटी पे चलता है, ये पता नहीं रेड क्रॉस के उसके, और बहरहाल उसने लेंस चेंज कराया, बोला वो 7,000 रुपये लगे थे मेरे। लेंस की कोई 2 किस्में थी, उन्होंने कहा जी ये करेंगे तो आपको ये देना पड़ेगा, ये करें, बाकी सब कवर्ड था चैरिटी में, कोई फीस है, कोई डॉक्टर फीस है। तो 7,000 रुपीज़ में उसने कराया था। हम 10-12 साल हो गए, माशाल्लाह जिंदा बैठा है, देख रहा, उसको नज़र आ रहा, सब कुछ ठीक है। छोटी मोटी ये मैं भूल गया हूँ कि छोटी मोटी शुरू में उसने कहा कि मुझे ये इशू जो बाद में ठीक हो गया। तो अब मेरा मशवरा ये बात ये कि मैं पूछना आप लोगों से भी चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इतना पैसा यहाँ देने की बजाय पाकिस्तान में आप क्या कर लें, अगर खुदा का शुक्र अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर वो कर सकते हैं, उसको कर लें तो आपको ये पैसे में बहुत ज़्यादा इसमें वो हो सकती है, अगर वही टेक्नोलॉजी वही प्रोसीजर सब हैं। अब ये मुझे एग्री नहीं करते, ना बच्चे मार रहे हैं ना आसवा मार रहे हैं, ये कहते नहीं, चूँकि हमारा ड्यू है पाकिस्तान जाने का, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। लेकिन मैंने कहा मैं वहाँ से करवा लूँ, ये मान नहीं रहे, ये कहते जी नहीं यहीं से करवाएं। तो चलो इसके मामले में किसी बारे में अगर किसी की मालूमात अच्छी अथेंटिक हो और तो फिर मुझे थोड़ा सा कमेंट्स कर दें। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपनी यहाँ तो कैंसिल कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ करके मैं फिर पाकिस्तान चला जाऊँ, फिर कोई, क्योंकि पाकिस्तान में अगर 3-4-5 महीने हम रह रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई कम, अगर ये डिसीजन लेना भी हुआ, अगर ये करना ही हुआ, फिर हम ये करेंगे कि वहाँ से जब वापस आएंगे तो फिर करवा लेंगे इंशाल्लाह, ये उम्रे से और इधर उधर से घूम घाम के वापस आके फिर करवा लेंगे, नहीं तो होगा। तो अब आप बताओ कि क्या ये इसमें गलत क्या है? मैं क्या बताऊं, हमने तो जो कह दिया अब वही बताएंगे कि क्या गलत है कैसे। ये तो एकदम बोलना मना हुआ तेन, तुमको घूम गुई बन के बह जाती है वटा या, मतलब कोई बात का उसमें कमेंट दे दो, अपनी कोई राय दे दो, अपना कोई इनपुट दे दो उसमें। नहीं वो तो बस बता दिया ना कि आपने नहीं कराना, वो तो मैंने शुरू में। फिर लोग कहते हैं पता नहीं अंकल ही तो लगता आंटी तो आपसे पता नहीं बहुत ही दुखी है तू, इन्ने को दुखी है तो नाल ही ना बैठे करान के। तो वो क्या क्यों आपने बिठाया वहाँ पे, आप तो खामोश बना रहे थे वीडियो। तो मैं उठा के यहाँ पे अब वो बंदा मैं अकेला बनाने लगा, जब कैमरा मैंने कहा डिस्टर्ब होऊंगा ये वहां से बार बार मुड़ के, तुम फिर मुड़ के मैंने क्यों तक नहीं, एक दफा देखा मुड़ के बंदा एक वीडियो बनाने लगा, झूठ 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 यूं करो तुम वो डिस्टर्ब ही होगा ना, मैंने कहा इससे अच्छा साथ ही बैठ जाओ। झूठ वीडियो में झूठ। और एक चीज़ लगते आते हैं, एक और भी बता दूं, ये मुझे पता है, एक बात तो कंफर्म हो गई कि आप लोग जो जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना आसवा, माशाल्लाह सब करोड़ोंपति लगता है कि वो कोई उसमें से मेरे जैसा कोई गरीब उसमें कोई नहीं। वजह आप लोगों के लिए जो मैं मालूमात के लिए कोई वीडियो लगाता हूँ कि शायद आप अगर ख़ुद भी करना चाहो ये काम कर लो, तो उसको कोई देखते बहुत कम है, गिने चुने हैं, मुझे पता है जितने हैं ना, मैं फिर भी वो काम करता हूँ। मैं इससे ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इतने व्यूज़ होंगे तो मैं ये वीडियो मैंने लगानी, मैंने आपके सरों पे वो मारे जानी, आप देखो नहीं देखो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बेसमेंट का ये जो काम है बहुत ही टेक्निकल काम है, बहुत, या बड़े लोग मिलियनर्स उनके इन्होंने ये काम करते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। मेरा ये जो दोस्त है एडविन, जिसके जो बनाने आया था, ये काम करता है माशाल्लाह। उसने आप देखें इस कंट्री में अपने बेटी को अमेरिका में तालीम दिलवा के उसको डॉक्टर बना देना, बन जाए डॉक्टर, आज वो माशाल्लाह बहुत खुश है। वो इसी चीज़, एक तो उसकी इलेक्ट्रिशियन की जॉब थी, साइड से वो बेसमेंटें बनाता था। तो उसके नॉलेज के लिए मैं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कोई खुद काम करना चाहे कर ले या चले, अगर काम नहीं करना है तो इस बिना पे कि एक ये चीज़ है कैसे होती है कोई देखे, लेकिन व्यू कम होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने देखी
गाड़ियों का अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, अब मैं नहीं आता हूँ, मुझे पुरानी तमाम वीडियोस के अपने व्यूज़ मुझे पता है कितने के हैं, कोई ऐसे ख़ास नहीं होते हैं। लेकिन मैंने फिर भी कल भी काम कर रहा था तो मैंने कहा गाड़ी के बारे में देखें, कुछ काम ऐसे हैं अगर कोई टेक्निकल माइंडेड बंदा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अगर वो चाहे तो कर सकता है, या अगर खुद करना ना भी चाहे, एक नॉलेज है, एक मालूमात है बंदा। देखो इवन लड़कियां हैं, वो कौन सा कोई मैकेनिकी का काम तो नहीं ना करती, लेकिन चलो उनको भी बेसिक नॉलेज तो हो। यहाँ हमारी जैसे ये सना है, ये लाइबा है, उनको अलिफ से बे नहीं पता कि ये गाड़ी किस तरह काम करती है, अगर ये हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, इसका है तो क्या इशू है। ये तो एक बेसिक नॉलेज है, आपको होनी चाहिए, कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन बहुत कम लोग देखते हैं। तो इसमें भी वो ऐसी ही वीडियो है मेरी, आधी को वो हो जाएगी कार के जो मैंने ब्रेक चेंज किए हैं, बाकी ये मिला के चलो मैं लगा दूंगा। चलो मुझे इससे नहीं है कि ये, या इसमें अगर मैं नहीं भी लगाई स्टिल वो वीडियो मैंने लगानी है जो मैंने कार के ब्रेक चेंज किए हैं। 2 चीज़ें हो गई। और बाकी अब सवाल ये कि हम 2 जने हैं, वीडियो तो हमारी ऐसी होगी, कभी फैमिली में चले गए तो उनमें से कुछ किसी की बना ली, और जो आना चाहता होता बना लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, दायरा की तरफ जाते हैं तो बना लेते हैं। आज जैसे बाहर निकले थे, आज हमारे ब्लड टेस्ट सारे थे, हमने कहा इसी महीने जितने भी ड्यू, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आसपा का जो अपॉइंटमेंट है थायराइड का, अक्टूबर में, तो उसके लिए भी वो ब्लड वगैरह ड्यू थे सारे, वो दिए, अपने भी दिए। तो ये सारी कहानी है। और बाकी कुछ कोई कहना चाहो तो कुछ कह लो। बस सारी तो कहानी बता दी, अब दोबारा मैं रिपीट करूँ कोई और ये नहीं कि कोई कहानी रिपीट करो। हाँ, तो कोई चीज छोड़ते नहीं तो बंदा कोई और बात करे, 10 दफा आप रिपीट कर, कोई ट्रांसलेटर नहीं तो मतलब जो तुम वो दसेंगे। तेरे भी तेरे 2-3 रूप है तेरा। आ जा कैंचल उतरना ना, ये भी बंदे का एक दूसरा रूप सामने आ रहा है। सप ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਚਲ ਉਤਰੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਿਚਣਾ ਇਦਾਂ ਪਈਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਖਾਲ ਉਤਰ ਜਾ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਬੜ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, तुम बात भी नहीं करने देते, मार रहे हैं वहाँ ਉਹਨੂੰ, तू इतना कर रही को लाड प्यार भी करना मना है ना। बिल्कुल, वो अभी आपको यहाँ से यूं कर वाइट करें, क्या ऐसे कैसे करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसकी मैंने मूछें खाई देनी, इसकी मैंने मूछें पकड़ के खाई देनी। देख अगर इसको मैंने मूछों से पकड़ा फिर पता लगेगा इसको। सो ये है कहानी। चलो फिर मैं बंद करता हूँ, कुछ और नहीं है तो कोई बात नहीं। और मेरा असल सवाल है, फिर याद आ गया सवाल। पीजो गाड़ी कोई पाकिस्तान में आई है। मैंने कुछ 1-2 दोस्त ने भी मेरे ने जिक्र किया, ये नहीं कि मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। कल या परसों मुझे दोस्त ने कहा कि भी अच्छी गाड़ी, क्योंकि जाएंगे हमको ट्रैवलिंग के लिए, गाड़ी तो कोई लेनी होगी, तो अगर इसके बारे में किसी को मालूमात है या किसी ने ले ली है ऑलरेडी, उसकी क्या परफॉर्मेंस है थोड़ा सा ये बता दें तो वो इंशाल्लाह ले लेंगे। अब क्योंकि अब नई आई है तो उसका यूज़ क्या होगा, तो अभी इंट्रोड्यूस ही अभी हुई है 6 महीने मेरा ख्याल होगी, तो वो नई की तरह ही। लेकिन अगर किसी ने ली है और किसी को इसके बारे में इल्म है तो थोड़ा सा मुझे बताए, तो फिर इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर देख लेंगे। और कौन सी कोई चीज़ रह गई है इसमें ये भी बता दी भाई, ठीक है बताने। आप बताओगे लोगों को तो कोई शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसने अभी कल ली हो, वो कहे कि चाहते हैं अंकल आ जाएं, मैंने ली थी लेकिन मैंने अब दूसरी ले, आप आ जाइए, हम आ जाओ, जो मार्केट की प्राइस पैसे देने, मैंने कोई फ्री लेनी। अच्छा और क्या रह गया? बस और तो अब कुछ है नहीं, इतने हूँ हसी जाने में बंद ही कर दूँ। तेन तो नाल बिठाना ही बेकार है।